Enchantée de leçon 8. La maison de Marie. Mary's house. So इस लेसन में बच्चों हम देखेंगे कैसे डिस्क्राइब करें ना केवल मेरी के हाउस को बट अपने खुद के हाउस को, एंड सीखेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रामर का टॉपिक. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरुआत इस बार आपकी नॉलेज टेस्ट के साथ. देवीने. So this is the picture. There is some vocabulary written here, कुछ पार्ट्स को मार्क करे हुए. टेक अ मिनट इन योर हेड, थिंक इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं. ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को अगर खुद को टाइम चाहिए, अदरवाइज मेरे साथ साथ गेस करने की कोशिश करना. आई विल टेल यू बोथ इनकी प्रोनाउंसिएशन एंड इनका इंग्लिश मीनिंग. ओके, शुरू करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ला cheminée, which is the chimney, as you can see here. After that, le toit. Le toit is छत या roof. Le grenier. Le grenier is the attic. Attic जहाँ पर हम बेसिकली स्टोर हाउस की तरह, स्टोरेज की तरह इस जगह को यूज कर लेते हैं. Then we have la chambre des enfants, which means children's bedroom. La fenêtre, which is the window. La chambre. La chambre is simply a bedroom. La salle de bain. Here, la salle de bain is the bathroom. La salle à manger. Salle à manger is the dining room or the dining area. Le salon. Le salon is the living room. La cuisine, जो यहाँ छुपी हुई है, which is the kitchen. ये वर्ड मिस हो गया मुझसे. Le plafond. Le plafond is छत. ओके, दीवार ये वाली. Le plafond. La porte d'entrée, the entrance gate of the house. La porte d'entrée. And then you have les escaliers, the staircase. ओके, सो ये बेसिक वोकैबुलरी है घर के पार्ट्स को डिस्क्राइब करने की. आगे बढ़ते हैं. avec la maison de Marie. मारी का घर कैसा है जानते हैं हम लोग. मैरी कह रही है c'est ma maison. Elle est grande belle. ये मेरा घर है, ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है. Il y a un rez-de-chaussée. rez-de-chaussée का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर. मेरे घर में एक ग्राउंड फ्लोर है, et deux étages and 2 floors उसके ऊपर. Au rez-de-chaussée, il y a un salon, une cuisine et une salle à manger. So, living room है, kitchen है and dining area है. Dans la maison, il y a un escalier. So, मेरे घर में एक staircase है जो फर्स्ट फ्लोर तक हमें ले जाएगी. Au premier étage, पहले मंजिल पे, il y a la chambre de mes parents avec une salle de bain. वहाँ पर मेरे पेरेंट्स का बेडरूम है and एक वॉशरूम अटैच्ड. Ma chambre est au deuxième étage. मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है. J'aime ma chambre. I love my room. Elle est très confortable. इतना कंफर्टेबल है ना वो कमरा. Il y a un bon jardin autour de ma maison. मेरे घर के आसपास एक बहुत खूबसूरत गार्डन है. Et je joue dans le jardin. और मैं इस गार्डन में बहुत खेलती. ओके, सो देखा कितना प्यारा सा डिस्क्रिप्शन दिया मेरी ने अपने घर का. अब इस डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अभी तक तो हमने सिर्फ पार्ट्स ऑफ हाउस की वोकैबुलरी सीखी. एक एक करके हाउस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं उनमें भी तो अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, उसकी वोकैबुलरी भी देखते हैं. शुरुआत करेंगे avec la cuisine, the kitchen. So this is Mary's kitchen where this right here is le placard, the shelves. Okay, the cupboards जहाँ पर आप सामान रखते हो. La gazinière. La gazinière, which is the gas. La cocotte-minute. La cocotte-minute, which is the pressure cooker. Le four, the microwave oven. L'évier. L'évier is the wash basin. Le robinet. Le robinet is the tap. Le réfrigérateur, the fridge.
Et le congélateur is the freezer. Okay? After the kitchen, we move to la salle de bain, washroom. In the salle de bain, this is la douche à main, the hand shower. Le savon, which is the soap. Le shampoing, the shampoo. Then we have la serviette. La serviette is the hand towel or the face towel. Le miroir, the mirror. La brosse à dents, toothbrush. Le dentifrice is the toothpaste. And finally, le lavabo, again a wash basin. Different words use होते हैं for a wash basin in the bathroom and for the wash basin in the kitchen. Okay? Then you have le salon, the living room. Now, in the living room, we have le rideau, the curtain. Okay, le rideau. La stereo. La télévision, the television. Le tiroir is the drawer here. Okay, le tiroir. La télécommande is the TV remote. La table, the table. Le tapis is the carpet. Le canapé is the sofa, the big one. Et le fauteuil is the armchair, single person. Okay? So बहुत सारी vocabulary सीख ली. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं to a small dialogue. Okay? So this is between Dennis and Cécile. And Dennis क्या कह रहा है? Salut Cécile, je cherche une maison. Hi Cécile, मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ. Comment est la maison à côté de ta maison? So तुम्हारे घर के साथ वाला घर वो कैसा है? So Cécile बता रही है उसे, c'est une bonne maison Dennis. बहुत अच्छा घर है Dennis. Est-ce qu'il y a une télévision? Dennis पूछ रहा है क्या वहाँ टीवी है? Oh oui, il y a une télévision, un fauteuil, il y a aussi une grande salle de bain. वहाँ पे टीवी है, आर्मचेयर और एक बहुत बड़ा बाथरूम. Super, je vais acheter la maison. I am going to buy that house. Dennis कह रहा है. So Cécile कह रही है, oui, très bien. बहुत अच्छे. So ये सारी vocabulary देखने के बाद और मेरी के हाउस के डिस्क्रिप्शन और ये डायलॉग पढ़ने के बाद वक्त आ गया है जानने का कि हम इस लेसन में क्या क्या सीखने वाले हैं. We are going to learn décrivez votre maison, describing our house, les articles contractés, the contracted articles in French, and les verbes en TIR, the TIR ending verbs. So शुरुआत करेंगे राइटिंग सेक्शन के साथ क्योंकि अभी अभी वोकैबुलरी की है तो जल्दी से हमें वो समझ भी आ जाएगा कि वो कैसे करना है. हाँ जी बच्चों, comment décrire notre maison? How do you describe your house? Pour commencer, we use this line. For the beginning, we use the standard line जो क्या कह रही है? Ma maison est, you can use anything. Elle est grand, petit, j'habite avec ma famille. So इस तरह की हम lines use करते हैं. आप बताओगे कि हाउस बड़ा है या छोटा, कितने रूम्स हैं, फिर एक एक करके जो रूम है उनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दोगे एंड फिर अपने रूम का थोड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दोगे. अब आई नो एकदम से लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी एक सैंपल आपके लिए रेडी किया है. सो मा मेजों, माय हाउस. सो मा मेजों ए बेल एक कंफर्टेबल. मैं वही स्ट्रक्चर यूज कर रही हूँ जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको दिखाया. शुरुआत मैंने किससे की? अपने घर को डिस्क्राइब करने के लिए दो खूबसूरत एडजेक्टिव्स पिक करके. फिर मैंने बोला एले ग्रांड, मेरा घर लाइक मेरे अकॉर्डिंग बड़ा है. Je habite avec ma famille au premier étage. सो मैं अपने घर में फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ. Il y a deux chambres dans ma maison. मेरे घर में दो रूम्स हैं. Il y a aussi un salon et une cuisine. एंड एक लिविंग रूम और किचन भी है मेरे घर में. ठीक है. सो ऑब्वियसली हम बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, तो मैं बस मेन चीजें लिख रही हूँ. एंड ध्यान रखिए एग्जाम में भी हमें यही करना होता है. एवरीथिंग ट्रू टू वर्ड लिखने
के चक्कर में हम कई बार गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देते हैं या टफ वोकैबुलरी में फंस जाते हैं. कीप इट सिंपल, कीप इट ग्रामेटिकली करेक्ट. ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पर भी अगर आप देखो मैंने सारी इजी वोकैबुलरी पिक की है, मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यहाँ पे अवॉइड की. ठीक है, तो ये बन गया फर्स्ट पैराग्राफ. अगले पे आते हैं. फिर मैंने शुरू करा एक एक रूम का छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन देके. मैंने क्या बोला, dans le salon il y a une grande télévision et une canapé. So in the living room एक बहुत बड़ा टीवी है और एक सोफा. La chambre de mes parents est grande, मेरे पेरेंट्स का रूम बड़ा है. Il y a un lit, une table et une armoire. वहाँ पे एक बेड है, टेबल है और अलमीरा. अगेन सिंपल वोकैबुलरी. Ma chambre est petite, मेरा रूम छोटा है. में il y a un lit, une petite table et chaise. एक बेड है वहाँ और एक छोटी सी टेबल और चेयर मेरे पढ़ने के. Il y a un jardin devant ma maison. मेरे घर के सामने एक गार्डन है. Et j'aime ma maison. I love my house. मुझे मेरा घर बहुत पसंद है. तो अगर किसी के स्कूल में लाइन फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये अगर आप गिनोगे मैंने 10 लाइंस लिखी है. कहीं कहीं पैराग्राफ्स प्रेफर करती हैं टीचर्स, तो ये 2 पैराग्राफ्स आप लिख सकते हो अपने हाउस को डिस्क्राइब करने के लिए. ठीक है बच्चों, इजी था ना डिस्क्रिप्शन ऑफ योर हाउस. एंड यू आर फ्री टू मेक एनी चेंजेस एज पर योर हाउस, ओके, एंड एज पर योर अंडरस्टैंडिंग. सो इसी के साथ पहला टॉपिक हमने कर लिया इतनी जल्दी से फिनिश. अब हम बढ़ते हैं हमारे ग्रामर की टॉपिक की तरफ. les articles contractés, the contracted articles. So क्या होते हैं एग्जैक्टली contracted articles? कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स बनते हैं बच्चों प्रेपोजिशंस को डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ जोड़ के. यानी हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन आ या द और उनके साथ जोड़ देते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स ल, ला, एल अपोस्ट्रोफ और ले. सो पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेपोजिशन आ वाले कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स. सो इससे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूं, क्या आप 1 मिनट लोगे और ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का ट्राई करोगे? क्योंकि करोगे. अब आप सोचोगे मैम टॉपिक समझाओ ना, ये क्या करा रहे हो भाई. इसी के जरिए टॉपिक आपको और अच्छे से समझ आएगा. तो अगर नहीं कर रहे ट्रांसलेट तो देख लो भाई, ऐसी होगी इनकी ट्रांसलेशन. je vais à la plage, je vais à l'école, je vais au cinéma et je vais à les soirées. कुछ गड़बड़ है. और वो गड़बड़ क्या है बच्चों? पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है. क्या je vais aller cinéma या je vais aller soirée? These are not right. यहाँ पहले 2 में मैंने preposition और definite article साथ लिखा, ये चल रहा था. लेकिन इन 2 केसेस में नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि preposition आ के साथ जब definite articles जुड़ते हैं वो contracted form लेते हैं. और वो क्या है बच्चों? preposition आ के साथ definite article ल जोड़ के बनता है ओ. आ प्लस ला आला ही रहता है, आ प्लस एल अपोस्ट्रोफ आल अपोस्ट्रोफ ही रहता है, लेकिन आ प्लस ले जुड़ के क्या बन जाता है? ओ, ए यू एक्स. तो एक एक करके इनको समझते हैं कैसे यूज करना है. ए यू जिसका मतलब होगा टू द या एट द, ये इस्तेमाल होगा किसी भी मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के साथ. लाइक je dis bonjour au professeur, I say good morning to the teacher. आला यूज होगा फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के साथ बच्चों. je parle à la fille, I'm speaking to the girl. इसी तरह अलेपोस्ट्रोफ यूज होगा सारे उन सिंगुलर नाउन्स के साथ जो वॉवल से शुरू होते हैं. लाइक il va à l'école, he goes to the school. एंड फाइनली aux कहाँ यूज करेंगे हम बच्चों? जहां हमारा नाउन प्लूरल हो. Okay, so elle montre les photos aux enfants. They show the photos to the children. तो आपको समझ आया
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म विद प्रेपोजिशन आ चार तरह की है, एयू, आला, अलोपोस्ट्रोफ और एयू एक्स। ना एक और हेल्प चाहिए मुझे आपकी। इन 3 सेंटेंसेस में क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, करेक्ट कौन सा है? आई स्पीक टू मैनुअल या टू द मैनुअल? आई गो टू दिल्ली या टू द दिल्ली? आई स्पीक टू माई फ्रेंड या टू द माई फ्रेंड? टू द माई फ्रेंड। मैम कैसी बात करते हो, तीनों में टू ही आना है ना। इतनी इंग्लिश तो हमें आती, तो भाई इतनी इंग्लिश आती है तो यही सेम चीज फ्रेंच में भी समझ लो कि विद नेम्स ऑफ पीपल, सिटीज एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, लोगों के नाम, शहरों के नाम और पोजेसिव एडजेक्टिव से पहले हम कभी भी कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, je parle à Manuel, je vais à Delhi et je parle à mon ami। तो हमें ये छोटा सा रूल ध्यान रखना होता है कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स करते वक्त, क्योंकि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आता है कि या तो सिर्फ आ लिखो या आ की कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ आ यूज होता है प्रॉपर नाउन्स और पोजेसिव एडजेक्टिव से पहले, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होगा अदर केसेस में। तो चलिए एक एक्सरसाइज हो जाए इसी बात पे। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा इस एक्सरसाइज को करने का। ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखा है, यानी ब्लैंक के राइट में जो वर्ड लिखा है, आपको उस पे फोकस रखते हुए अपना करेक्ट आंसर पिक करना है। जब ये हो जाए तो क्या करोगे, यहां से अपने आंसर्स को मैच। देखा कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल का पहला पार्ट। तो चलो इसी बात पे अब आगे बढ़ते हैं। डीई प्रपोजिशंस के साथ कौन से कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल यूज होते हैं वो देखते हैं। अगेन थोड़ी हेल्प नहीं करोगे ना, पता था मुझे नालायक को। ये देखो कुछ इस तरह की होगी इन 4 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। Je viens de la plage, je viens de la plage, je viens de l'école, je viens de le cinéma et je viens de les soirées। बोलोगे मैम हाँ, तो अब पता चल गया है हम लोगों को कि पहले 2 सही है, बाकी के 2 गलत है। तो अब बता भी दो इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे होती है। तो ये देखो बच्चा, डीई प्रपोजिशन के साथ जब हम डेफिनेट आर्टिकल्स को जोड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी। फॉर ऑल मैस्कुलिन सिंगुलर्स वील हैव द्यू, फेमिनिन सिंगुलर द ला, सिंगुलर नाउन्स वोवेल से शुरू होने वाले द अपोस्ट्रोफ एंड प्लूरल्स के साथ डीई एस। आसान था ना। कुछ एग्जांपल्स देख ले। पहले मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के, je parle à la mère du garçon, so I speak to the mother of the boy। तो देखा यहाँ दोनों यूज हो रहे हैं, पर फिलहाल हाईलाइट मैंने डी वाला किया, ठीक है। इसी तरह फेमिनिन सिंगुलर नाउन का एक एग्जांपल, c'est la robe de la fille, this is the dress of the girl। अगेन आई एम फोकसिंग ऑन नाउन जो आर्टिकल के राइट में आता है, ठीक है। इसी तरह द l'apostrophe सारे सिंगुलर नाउन्स जो वोवेल से शुरू हो, la maison de l'enfant est grande, the house of the child is big। एंड फाइनली बच्चों प्लूरल नाउन का एक एग्जांपल, ce sont les papiers des étudiants, so these are the paper of the students। ओके चलिए इसी बात पे एक और हेल्प करिए मेरी। क्या होगा यहाँ पे, आई टॉक ऑफ मैनुअल, इंग्लिश में यूजुअली हम अबाउट बोलते हैं। आई कम फ्रॉम दिल्ली, इट इज द बुक ऑफ द ऑफ माई फ्रेंड। तो यहाँ भी बच्चों हमें सेम चीज याद रखनी है, लोगों के नाम, शहरों के नाम और पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन डी यूज करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं यूज करना, ठीक है। तो चलो इसी बात पे ये एक्सरसाइज ट्राई करो। ध्यान रखना या तो सिर्फ डी आएगा या उसकी कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगी। अगेन किस चीज पे ध्यान रखना है कि ब्लैंक के राइट में जो वर्ड गिवन है वो क्या है,
क्या वो एक शहर का नाम है, इंसान का नाम है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, या सिंपल एक नाउन है? जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, यहां से अपने आंसर्स को जरा मैच कर लें। ठीक है, देखो कंप्लीट भी कर लिया हमने कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स का टॉपिक। अब ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ये करके यहाँ से आंसर्स को टैली कर लेना। आई विल सजेस्ट एक्सरसाइज और सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि जब टाइम मिले इसको खुद से प्रैक्टिस कर ले। अब कई स्कूलों में तो प्रेपोजिशन आ का एक अलग क्वेश्चन आता है, प्रेपोजिशन द का एक अलग। लेकिन क्या पता आपकी टीचर आपसे इंप्रेस हो जाए कि मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, उन्हें तो सब आता है, एक मिक्स क्वेश्चन भी दे ही देते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन जिसमें आप प्रेपोजिशन वाले आर्टिकल्स भी आ सकते हैं और द वाले। तो उनके लिए मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स, वो वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हमेशा बच्चों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एकदम से मत यूज कर, ये याद रखना। ठीक है, नेवर यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डायरेक्टली, सेंटेंस को ध्यान से समझना पे। je vais डैश प्लाश। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, करना कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन कौन सा यूज होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे मुझे दिख रहा है कि सेंटेंस में आले वर्ब है, सो आई गो टू सम प्लेस, तो यानी यहाँ पे प्रेपोजिशन आ यूज होगा। सेकंड, देखना कि क्या उस सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल की नीड है या नहीं। अगर यहाँ प्लाश की जगह लिखा होता लेट्स से दिल्ली, तो मेरे आंसर में मैं सिर्फ प्रेपोजिशन यूज करती, राइट? लेकिन फिलहाल मेरा सेंटेंस क्या है, je vais à डैश प्लाज। प्लाज इज अ कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या है, फेमिनिन सिंगुलर, तो मैंने यूज किया डेफिनेट आर्टिकल ला। je vais à ला प्लाज। पहले सोचना प्रेपोजिशन कौन सा आना चाहिए, उसके बाद सोचना डेफिनेट आर्टिकल कौन सा। और अगर बाय चांस डेफिनेट आर्टिकल एल ई या एल ई एस हो, तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, तो ये रही इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्सरसाइज। यहाँ पे आ वाले आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, द वाले भी आ सकते हैं, तो सेंटेंस को ध्यान से समझकर अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इस एक्सरसाइज का, तसल्ली से इसको ट्राई करना, एंड जब कंप्लीट कर लो सोल्यूशन की से यहाँ से मैच कर लेना, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, which is les verbes which are TIR ending. Okay, so TIR ending verbs करते वक्त फ्रेंच में हमारा रेडिकल थोड़ा अलग होता है। क्या मतलब, सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी ज थ्यू इल एल के केस में जो रेडिकल होगा उसमें से TIR कट, जो वर्ब होगी उसमें से TIR कट करके रेडिकल बनेगा। Whereas प्लूरल सब्जेक्ट्स नु वो इल्स एल्स के लिए जो रेडिकल बनेगा वो कैसे बनेगा, वर्ब में से आई आर कट कर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया द वर्ब सोर्तीर, इट्स अ TIR वर्ब। तो अब मेरे को दो रेडिकल्स बनाने हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए मुझे क्या कट करना है बच्चों, TIR, सो रेडिकल बनेगा सौर। Whereas प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए मुझे कट करना है सिर्फ IR, तो रेडिकल बना सॉर्ट। ठीक है, ये रूल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हुआ स्टेप 1, रेडिकल हमारा रेडी है। हम हमेशा कॉन्जुगेशंस में क्या करते हैं, रेडिकल में कुछ एंडिंग्स ऐड करते हैं। तो क्या वर्ब एंडिंग्स ऐड होगी बच्चों, एस एस टी ONS EZ, एस एस टी ONS EZ ENT। तो ये हमारा कॉमन सा फ्लो है जो हमें याद है। तो भाई कैसी लगेगी सौरतीर की कॉन्जुगेशन, सौर सौर सौत, सौरतों सौरते सौर। तो आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स में मैंने सिर्फ SOR लिखा, प्लूरल सब्जेक्ट्स में SOR T। इसके जैसी कुछ और वर्ब्स होती हैं, पार्थीर, मेंथीर और सेंथीर, ये सब इसी रूल को फॉलो करके कॉन्जुगेट की जाती है।
प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने यहाँ बना दी है। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लो ताकि यकीन हो जाए कि आपको समझ आ गया है इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन कैसे होती है। एंड होने के बाद यहाँ से अपने आंसर्स को मैच भी कर लेना। तो चलिए बच्चों, इससे पहले चैप्टर रैप करूं, एक लास्ट चीज पक्का पक्का, les verbes avec a। अब ये वाला पार्ट उन बच्चों के काम आएगा जिनके स्कूल में मिक्स्ड एक्सरसाइज आ रही है। तो कौन सी वो वर्ब्स हैं जिनके साथ ज्यादातर प्रेपोजिशन आ वाले कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स आपको मिलेंगे? वो होगी द वर्ब aller à, to go somewhere, donner quelque chose à quelqu'un, to give something to someone, envoyer quelque chose à quelqu'un, to send something to someone। मैंने सबके एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं। penser à quelque chose ou quelqu'un, to think about something or to think about someone, et téléphoner à quelqu'un। तो ये 5 वर्ब्स अगर आपको सेंटेंसेस में मिल रही हैं, आपको पता है इनके आगे आने वाला आर्टिकल प्रेपोजिशन आ की फैमिली से बिलोंग करेगा। इसी तरह कुछ वर्ब्स विथ डी वो होंगी parler de, I'm speaking of something or someone, rentrer de, I'm returning from somewhere, and venir de, I'm coming from somewhere again। ठीक है, तो पार्ले, रॉन्थ्रे, वनीर के साथ ज्यादातर डी प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। सो अब मैं फाइनली कहूंगी ये चैप्टर हुआ समाप्त। हमने कवर कर लिया है कैसे घर को डिस्क्राइब करते हैं अपने, कैसे कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स यूज होते हैं सेंटेंस में, कैसे टीआईआर बॉन्डिंग वर्ब्स कॉन्जुगेट होते हैं। लास्ट में हमने एक एडिशनल रूल समझ लिया उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके स्कूल में मिक्स एक्सरसाइज आती है कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स की। सो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक एक न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए और